Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. I would say a warm welcome to all of you on my channel. If you are new here, do subscribe my channel. In my previous lecture, I discussed about two different approaches in research. One is quantitative, another one is qualitative. And why is it important to distinction between quantitative and qualitative research? So go and watch the video for the better understanding. But for now, let me discuss about the assumption of quantitative methods and qualitative methods. First, what does it mean, assumption? Assumption is a statement that is assumed to be true and from which a conclusion can be drawn. In simple words, assumption is a process of assuming something. In Urdu, assumption means mukaddama or mafruze. Now, what are the mukaddame of quantitative methods? हमने इसमें ये डिस्कस करना है. First, reality is objective, out there and independent of the researcher. Therefore, reality is something that can be studied objectively. Reality is reality, right? It doesn't change. It's independent. It does not depend on researcher that how she will interpret. Now it is understood that there isn't a need of researcher personal objectivity or subjectivity. ना तो रिसर्चर की पर्सनल फीलिंग्स इन्वॉल्व होंगी ना ही उसके ओपिनियंस बिकॉज क्वांटिटेटिव रिसर्च इज फैक्चुअल okay let me give you an example of this. For example, COVID-19. If you are going to conduct a research on COVID-19, you will see how many people get affected from this disease, how many died from this pandemic. So overall, कितनी डेथ्स हुई, कितने लोग इन्फेक्टेड हुए और कितने लोग रिकवर हुए. So this is something factual. You or I cannot draw a conclusion on this. So that's why quantitative research is a type of dry research in which you are stay away from the research itself. और बहुत ही आसान अल्फाजों में ये कि ऐसी रिसर्च जिसमें रिसर्चर जो है वो नुक्ताचीनी ना करे अपनी. Okay. Now the researcher should remain distant and independent of what is being researched. ठीक है, ये बात हमने क्लियर कर दी है. The value of the researcher do not interfere with or become part of. The research is value free. अब इसमें क्या है, research जो है वो value free होनी चाहिए. अब वो कैसे होगी? जब एक researcher अपनी research को वो वैल्यू नहीं देगा, दैट मीन्स अपने ओपिनियंस, अपनी आइडियोलॉजी नहीं देगा. सो लेट मी क्लियर वन थिंग. आप यहाँ पर अगर क्वांटिटेटिव मेथड को समझ लेते हैं ना, तो क्वालिटेटिव इसके रिवर्स में है. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द अदर थिंग विल ऑटोमेटिकली सेव. ओके. Now, research is based primarily on the deductive forms of logic, and theories and hypotheses are tested in a cause-effect order. And the goal is to develop generalizations that contribute to theory that enable the researcher to predict, explain, and understand some phenomena. First of all, you need to understand what is deductive forms are reasoning and inductive forms are reasoning.
ओके, डिडक्टिव फॉर्म हम उसको कहते हैं जिसमें हम थ्योरी टेस्ट कर रहे हों। ओके, ठीक है। अब हम जो डिडक्टिव फॉर्म है उसमें टेस्ट करते हैं थ्योरी को, कोई भी एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको टेस्ट कर रहे हैं। वी हैव इंडक्टिव रीजनिंग एज वेल, विद इन फ्यू मिनट्स विल डिस्कस। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप डिडक्टिव फॉर्म्स को समझ लीजिए कि जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। और इसमें जो हाइपोथेसिस आपका होगा वो किस तरह टेस्ट किया जाएगा, वो कॉज इफेक्ट ऑर्डर में टेस्ट किया जाएगा। आप एक तरफ कॉज लिखेंगे और एक तरफ उसके इफेक्ट लिखेंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन conduct your research. And the main notion of quantitative method is to develop journalization. अपने जर्नलाइजेशन को डेवलप करना है, क्योंकि डिडक्टिव फॉर्म में क्या होता है, आपको ब्रॉडर जर्नलाइजेशन से स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करनी होती है, और आपकी जो भी जर्नलाइजेशन आपने डेवलप की हैं वो फिर आपकी थ्योरी को कंट्रीब्यूट करेंगी। मतलब थ्योरी तो आपने वही लगाई ना जो पहले एग्जिस्ट कर रही है, आप तो जस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं उस थ्योरी को। सो आपकी जर्नलाइजेशन जो निकलेंगी फिर वो थ्योरी पर लगेंगी। अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है कि यू हैव टू प्रिडिक्ट, रिसर्चर को प्रिडिक्ट करना है, देन एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड सम फिनोमेना जो कि थ्योरी के अंदर ही होंगे, खुद से उसने कुछ भी नहीं करना है। बिकॉज रिसर्च मीन्स इज अथेंसिटी, आपको अथेंसिटी दिखानी पड़ती है। सो नाउ वी हैव 3 जनरल टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स। यहाँ पर मैंने जस्ट 3 ही पुट अप किए हैं, यू कैन हैव मैनी मोर। ठीक है, अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स और कॉजी एक्सपेरिमेंट्स हैं। आप जो है ना एक्सपेरिमेंट्स को याद करेंगे तो कॉजी एक्सपेरिमेंट्स ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, क्योंकि रिसर्च में मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से कि ऐसी चीज़ें होती हैं, आप एक याद करोगे ना तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। जैसे आप क्वालिटेटिव को याद करोगे तो क्वांटिटेटिव खुद ब खुद ही आपको, बिकॉज वो अपोजिट पोल में है, अपोजिटली वर्क कर रही है। इसी तरह आप एक्सपेरिमेंट्स को याद करेंगे तो कॉजी एक्सपेरिमेंट्स खुद ही आपको याद हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, दीज आर द ट्रू एक्सपेरिमेंट्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय रैंडम असाइनमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट्स to experimental conditions and the use of experimental controls। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात क्लियर होगी कि एक्सपेरिमेंट्स में रैंडम असाइनमेंट्स दिए जाते हैं पार्टिसिपेंट्स को। ओके, अब जो सेकेंडली है हमारे पास कॉजी एक्सपेरिमेंट्स, उसमें क्या होता है कि इन दिस स्टडीज इट शेयर ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। ठीक है, सब कुछ वैसे ही है, इसका फीचर्स डिज़ाइन सब कुछ, एक्सेप्ट दैट दे इन्वॉल्व नॉन रेंडमाइज असाइनमेंट्स। उसमें रेंडमाइज असाइनमेंट्स है, इसमें नॉन रेंडमाइज असाइनमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट्स टू एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। अब बात क्लियर हो गई कि वहाँ पर हम रेंडमली असाइनमेंट देंगे अपने पार्टिसिपेंट्स को, जो वर्क है, जो सब्जेक्ट है हमारा, उससे रिलेटेड। लेकिन कॉजी एक्सपेरिमेंट्स में क्या होगा कि हम वो नॉन रेंडमाइज असाइनमेंट्स उनको दे रहे होंगे। नाउ हेयर आपने रेंडम असाइनमेंट को पढ़ना है या आपको नहीं मालूम कि रेंडम असाइनमेंट्स क्या होती हैं, सो आप रेंडम असाइनमेंट को पढ़ेंगे तो आपको नॉन रेंडमाइज असाइनमेंट खुद ही याद हो जाएंगी, क्योंकि वो इसके अपोजिट पोल में काम कर रही है। अब मैं बता दूं कि रेंडम असाइनमेंट क्या होता है। ऐसे असाइनमेंट्स आप जो रेंडमली देते हो, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आइदर मेल और फीमेल, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना वर्क कंप्लीट करें। ओके, लेकिन नॉन रेंडमाइज असाइनमेंट में क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं। तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड कॉजी एक्सपेरिमेंट्स। ओके, एंड देन सर्वेज में क्या होता है कि इट इंक्लूड क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज यूजिंग क्वेश्चनायर्स और इंटरव्यूज़। हमारे पास अब क्वेश्चनायर्स और इंटरव्यूज़ दो हैं, ठीक है ना। ये सर्वे हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोथ, क्योंकि दीज आर द टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन विद द इंटेंट ऑफ एस्टिमेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड ऑन अ स्मॉलर सैम्पल फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। ठीक है, अब आपको मालूम हो गया कि विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनायर और इंटरव्यू हम सर्वे कर सकते हैं, हम एक लार्ज पॉपुलेशन को टारगेट कर सकते हैं और वहाँ से हम जो है अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं।
This is all about the assumptions of quantitative methods. Inshallah, in my next video, I'll discuss about the assumptions of quantitative method. तब तक के लिए खुश रहें और खुश रखें दूसरों को। अगर ये भी नहीं हो सकता तो दूसरों को खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।